لیکن پھر بھی اگر آپ نظر ڈالیں گے جو با ہیں، اب با تو ساکن بن گیا ہے، ٹھیک ہے، اب با ساکن ہے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ با کس والے حروف میں آتا ہے؟ کلکلا. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر دونوں قاعدے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے. کس کو کہتے ہیں کہ مد لین کے دو حروف ہیں، یا ساکن اور وا ساکن. اگر آپ نے یا ساکن سے پہلے زبر والا حروف دیکھا یا متحرک مفتوح والا حروف دیکھا، کیونکہ متحرک مفتوح والا حروف اصل میں کیا ہوتا ہے؟ زبر والا حروف ہوتا ہے. اگر آپ نے یا ساکن سے پہلے زبر والا حروف دیکھا تب جا کر وہاں پر لین کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے. لیکن جو ہی آپ لین کے بعد کوئی بھی حرف دیکھتے ہیں، اس پر چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، چاہے دو زیر ہو، چاہے دو پیش ہو، آپ وہاں پر وقف کر رہے ہیں، تب جا کر وہ امیجنیشن میں کیا کرتے ہیں، آپ اس پر جزم ڈالتے ہیں، تب جا کر آپ آخری والی جو حرکت ہے اس کو نہیں پڑھتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے. تو آج ہم جو قاعدہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس قاعدے کا نام ہے مد لین عرض وقفی. جس طریقے سے ہم نے مد سکون عرض وقفی کو سمجھا، اسی طریقے سے جو مد لین عرض وقفی ہے یہ بھی اسی کے جیسا ہے. لیکن وہاں پر ہم حرف مدہ کے بعد اگر ہم کسی حرف پر وقف کر رہے تھے تب جا کر ہم کہتے تھے کہ وہاں پر مد سکون عارضی وقفی ہوگا. لیکن یہاں پر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر مد لین ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر لین کے بعد حرف لین کے بعد اگر کوئی بھی حرف ہو اس پر وقف کیا جا رہا ہو تب جا کر وہاں پر مد لین عارضی وقفی کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے. لیکن آپ نے اگر لین کا قاعدہ اچھی طریقے سے سمجھا ہوگا تب جا کر آپ اس قاعدے کو اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے. اگر آپ نے اس قاعدے کو نہیں سمجھا ہوگا پھر سے اس ویڈیو کو دیکھیے گا، آلریڈی اپلوڈڈ ہے، تب جا کر آپ اس قاعدے کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ مد لین عارض وقفی کا قاعدہ کیا کہتا ہے. بالکل آسان ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے گا، اگر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر پہلے ہی لکھا گیا ہے کہ مد لین، ٹھیک ہے، چونکہ ہم آلریڈی یہ پڑھ چکے ہیں کہ مد لین جو ہے اس کے دو حروف ہیں، یا ساکن اور وا ساکن، ٹھیک ہے. اس کا قاعدہ کیا کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے یا ساکن سے پہلے زبر والا حرف دیکھا، حرف انتی سے کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، اگر وہاں پر آپ نے زبر کو پایا یا آپ کہتے ہیں کہ آپ نے متحرک مفتوح والے حرف کو وہاں پر پایا، تب جا کر یہاں پر کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ یا لین ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر وا ساکن سے پہلے آپ نے کوئی بھی حرف دیکھا اس پر کیا ہوگی؟ زبر ہوگی. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر متحرک مفتوح والا حرف ہو تب جا کر وہاں پر کون سا قاعدہ استعمال ہوتا ہے؟ والین کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو کس طریقے سے پڑھنا تھا وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو میں یہاں پر ریویژن کراتا ہوں. دیکھیے گا ہم نے کیا پڑھا کہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے. دیکھیے گا ہم نے وہاں پر پڑھا کہ اس کو جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. نرمی اور جلدی کے ساتھ ہم نے حرف لین کو پڑھنا ہے. لیکن جلدی کا معنی کیا تھا کہ وہاں پر ہم نے کیا سمجھا تھا کہ جلدی کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنی جلدی بھی نہیں پڑھنا ہے کہ حمزہ کی شکل لے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا جلدی ہم نہیں اس کو پڑھیں گے کہ حمزہ کی شکل لے. جس طریقے سے اگر میں یہاں پر لکھوں گا میم حمزہ زبر ما، اس کو ہم جلدی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کوئی بھی ایگزامپل لے سکتے ہیں. اتنی جلدی بھی ہم نے حرف لین کو نہیں پڑھنا ہے. اور نرمی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اتنی نرمی کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا ہے کہ حرف مدہ کی شکل لے. ٹھیک ہے، حرف مدہ کی شکل لے. اگر ہم اتنی نرمی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ یہ حرف مدہ کی شکل لے رہا ہے تب جا کر وہاں پر لین کا قاعدہ ہم استعمال اچھی طریقے سے نہیں کرتے ہیں. تو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ جلدی اور نرمی کے ساتھ تو پڑھنا ہے، لیکن اتنی جلدی بھی نہیں پڑھنا ہے کہ حمزہ کی شکل لے، اتنی نرمی کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا ہے کہ حرف مدہ کی شکل لے. اگر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ لام وا زبر لو، آپ کو لو تو جلدی نہیں پڑھنا ہے، لو ایسا بھی نہیں پڑھنا ہے، لو ایسا بھی نہیں پڑھنا ہے، بلکہ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ لو. ٹھیک ہے، اور با یا زبر بھئی بھی نہیں پڑھنا ہے، بئی بھی نہیں پڑھنا ہے، بلکہ بئی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، نرمی اور جلدی کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. تو یہ تھا حرف لین کا قاعدہ، آپ نے اچھی طریقے سے سمجھا. تو چلیے اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے. ہمارا جو قاعدہ ہے وہ ہے مد لین عارض وقفی. دیکھیے گا بالکل مد سکون عارض وقفی کے جیسا ہے. تو اس کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے حرف لین کے بعد اگر آپ نے کوئی بھی حرف دیکھا،
कोई भी हरूफ 29 हम मान के चलते हैं कि हरूफ कितने हैं, 29 हैं, ठीक है। कोई भी हरूफ हो सकता है, उस पर क्या होंगे, सिचुएशंस क्या है कि वहां पर जबर भी हो सकती हैं, जेर भी हो सकती हैं, पेश भी हो सकती है, ठीक है, और दो जेर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ख़ास ख्याल रखना है कि दो ज़बर के बगैर, ठीक है, ये जो दो ज़बर हैं इसके बगैर, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए, या आप कह सकते हैं दो पेश। अगर वहाँ पर आपने हुर्फ लीन के बाद इन हरकत वाले हुर्फ को देखा, आपने अगर वहाँ पर ज़बर वाला हुर्फ देखा, आपने वहाँ पर ज़ेर वाला हुर्फ देखा, हुर्फ लीन के बाद मैं बात कर रहा हूँ, आपने वहाँ पर पेश वाला हुर्फ देखा, आपने वहाँ दो ज़ेर वाली हुर्फ को देखा, आपने वहाँ दो पेश वाले हुर्फ को देखा, बात आपको समझ आ रही है ना। तो जिस तरीके से यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर क्या है कि कैफा, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा जो काफिया, क्या है काफिया, इसका मतलब क्या है कि या से पहले कौन सा वाला हुर्फ है, मुतहरिक मफ्तू वाला हुर्फ, या आप कह सकते हैं कि ज़बर वाला हुर्फ है। यहाँ पर कौन सा कायदा इस्तेमाल होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा कि हुर्फ लीन का कायदा इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्या है, कोई भी हुर्फ है लेकिन वहाँ पर क्या है, हरकत है, दो ज़बर के बराबर, दो ज़बर के बगैर वहाँ पर आपने ज़बर को देखा, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, जब आप यहाँ पर वक़फ़ कर रहे हैं, अभी तक तो आप कैफ़ा पढ़ते थे, लेकिन जो ही आप वक़फ़ करेंगे आप इस तरीके से पढ़ेंगे कैफ़, ठीक है। इमेजिनेशन में आप क्या करते हैं कि जो ये फ़ा है, हुर्फ फ़ा है, इस पर तो ज़बर हैं, लेकिन इमेजिनेशन पढ़ने के बावजूद जब आप पढ़ते हैं इसको, आप इमेजिनेशन में इस तरीके से शायद लिख रहे हैं, इस तरीके से शायद पढ़ रहे हैं, फ़ा पर क्या हो, जज़म हो। बात आपको समझ आ रही है, फिर से सुनिएगा। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, कैफा, लेकिन जो ही आपने वक़फ़ किया आप पढ़ते हैं कैफ। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एक्चुअली आप शायद इमेजिनेशन में ये करते हैं कि जो फ़ात है, फ़ा पर तो ज़बर था, लेकिन जो ही आप इस पर वक़फ़ करते हैं आप शायद इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि फ़ा पर अगर सुकून हो, जो ही अगर मैं यहीं पर इसको लिखूँगा, क्या आप इसको कैफ पढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि फ़ा पर भी कुछ नहीं है, फ़ा पर जज़म है, ठीक है। तो इमेजिनेशन में हम क्या करते हैं कि उस आखिर वाली हुर्फ को क्या करते हैं, उसको हुर्फ साकिन में तब्दील करते हैं, चाहे वो ज़बर वाला हुर्फ हो, चाहे वो ज़ेर वाला हुर्फ हो, चाहे वो दो पेश वाला हुर्फ हो, दो ज़ेर वाला हुर्फ हो, या पेश वाला हुर्फ हो, ठीक है, लेकिन दो ज़बर के बगैर आपने देखना है। और एक कायदा मैं इस आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर क्या आप देखते हैं, लाम याज़बर लाई, इसी हुर्फ को मैं यहाँ पर नीचे उतारूंगा, लाम याज़बर लाई। अगर मैं आपको कहूँगा कि कौन सा कायदा इस्तेमाल होता है, आप फ़ौरन कह सकते हैं कि यालीन का कायदा इस्तेमाल होता है। लेकिन जो ही आप नज़र डालते हैं कि लाम के नीचे क्या है, ज़ेर हैं, आप क्या पढ़ते हैं, वल्लैल। लेकिन जो ही आप वक़फ़ करते हैं आप क्या पढ़ते हैं, वल्लैल। आप कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, शायद इमेजिनेशन में आप क्या करते हैं, आप असल में जो लाम है इस पर जज़म डालकर आप इसको किस तरीके से पढ़ते हैं, वल्लैल, ठीक है। सबसे पहले फिर से मैं आपको एक एग्जाम्पल, पेश वाली हुरूफ की एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करूँगा। या शुआइबो, ठीक है, या शुआइबो। लेकिन जो ही आप वक़फ़ करते हैं आप क्या पढ़ते हैं, या शुआइब, ठीक है, या शुआइब। लेकिन यहाँ पर फिर से आप ध्यान रखिएगा, देखिए अगर मैं इसको इन तीन हुर्फों को आगे लूँगा, आइबो, ठीक है, आइबो। लेकिन यहाँ पर कौन सा कायदा इस्तेमाल होता है, आइन या ज़बर, आई या साकिन से पहले ज़बर वाला हुर्फ तो लीन का कायदा इस्तेमाल होता है। लेकिन जो ही आप वक़फ़ करते हैं आप क्या पढ़ते हैं, आइब, ठीक है। इमेजिनेशन में क्या असल में होता है कि जो बा है इस पर जज़म आती है, तो अब आप
फिर से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पर कौन सा कायदा इस्तेमाल होता है, आप फ़ौरन कह सकते हैं कि यहाँ पर मद लीन आर्ज़ी वक्फ़ी का कायदा इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर भी अगर आप नज़र डालेंगे, जो बा है, अब बा तो साकिन बन गया है, ठीक है, अब बा साकिन है, आप क्या कह सकते हैं कि बा किस वाले हुरूफ में आता है? कलकला। तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों कायदे इस्तेमाल होते हैं, चूंकि कलकला के 5 हुरूफ हैं, बा, जीम, दाल, तो, कॉफ, इन पर अगर जज़म होगी या इन पर वक़फ़ किया जा रहा हो, यहाँ पर वक़फ़ भी हम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर असल में हम क्या करते थे, वक़फ़ करते थे, तो वक़फ़ के बावजूद जो बा है ये साकिन बन गया, हुर्फ़े साकिन बन गया, तब जाकर यहाँ पर कलकला भी इस्तेमाल होता है और मद लीन आर्ज़ वक्फ़ी का कायदा इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वाज साकिन से पहले ज़बर वाला हुरूफ लीन का हुरूफ है और उसके बाद क्या है कि एक हुरूफ आया, उस पर वक़फ़ हम करते हैं, वो साकिन बन रहा है, तब जाकर ये तीनों एक ही आवाज़ में इसको पढ़ना है 3 अलिफ के बराबर। इसकी मिक़दार कितनी है? 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। तीन अलिफ के बराबर इसको खींचकर पढ़ना है। किस तरीके से? अईब, आखिर कलकला का कायदा इस्तेमाल आपने करना है, क्योंकि यहाँ पर बा आया, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी देखते हैं कि अगर वहाँ पर ये भी हुर्फ आ रहे हैं, बा, जीम, दाल, ता, कॉफ, तब जाकर आप ये भी कायदे इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ वहाँ पर कलकला का भी कायदा इस्तेमाल करना है। तो आपने क्या समझा? मद लीन आर्ज़ वक्फ़ी का कायदा। फिर से मैं आपको इसको रिविजन कराता हूँ, आपने क्या समझा? देखिए, आपने क्या समझा? तो मद लीन किसको कहते हैं कि मद लीन के 2 हुर्फ हैं, या साकिन और वाज साकिन। अगर आपने या साकिन से पहले ज़बर वाला हुरूफ देखा या मुतहरिक मफ्तू वाला हुरूफ देखा, क्योंकि मुतहरिक मफ्तू वाला हुरूफ ही असल में क्या होता है? ज़बर वाला हुरूफ होता है। अगर आपने या साकिन से पहले ज़बर वाला हुरूफ देखा, तब जाकर वहाँ पर लीन का कायदा इस्तेमाल होता है। लेकिन जो ही आप लीन के बाद कोई भी हुरूफ देखते हैं, उस पर चाहे ज़बर हो, चाहे ज़ेर हो, चाहे पेश हो, चाहे 2 ज़ेर हो, चाहे 2 पेश हो, आप वहाँ पर वक़फ़ कर रहे हैं, तब जाकर वो इमेजिनेशन में क्या करते हैं, आप उस पर जज़म डालते हैं, तब जाकर आप आखिरी वाले जो हरकत है उसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर क्या था, या शुआइब, लेकिन जो ही आप इस पर वक़फ़ करते हैं, आप पढ़ते हैं या शुआइब। आखिर क्या होता है कि बा पर जज़म आती है, तो तब जाकर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप फिर से इमेजिनेशन करते हैं कि यहाँ पर कौन सा कायदा इस्तेमाल होता है, कलकला का कायदा इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा आप फिर दोनों कायदे इस्तेमाल करते हैं। ये था मद लीन आर्ज़ वक्फ़ी का कायदा और इसकी मिक़दार कितनी है? 3 अलिफ के बराबर इसको खींच कर पढ़ना है। ये था मद लीन आर्ज़ वक्फ़ी का कायदा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा।